Came to Future CAs, hope you all are doing well. This is CA Devesh Adpani, your faculty for CA Final AFM. Today we have CA Karthik Iyer, All India Rank 25, who has secured an All India Rank 25 in May 26. First of all, heartiest congratulations, CA Karthik, on the tremendous achievement of first adding that prefix CA against your name and the suffix All India Rank. Thanks a lot, Devesh. Thanks for the opportunity. Thanks for having me here. And really excited for the interview. Looking forward to this. एब्सोल्युटली कार्तिक, आपने टाइम निकाला। अभी आपका स्टार्टअप फेज चल रहा है, फिर भी आपने टाइम निकाला, उसके लिए बहुत थैंक यू। एंड ये यही दिन है जिसके लिए आपने लास्ट 5-6 साल से मेहनत की थी। सो यू डिजर्व ऑल द स्टारडम एंड सॉर्ट ऑफ प्लीज मेक द फुलेस्ट ऑफ दैट स्टारडम। जितना चॉकलेट्स खाना है खाओ, आप जरा भी शुगर लेवल की टेंशन मत करना फिलहाल, पूरी लाइफ बढ़िया Sure. उसके लिए। Absolutely not. एंड Sure. हार्टिएस्ट That's for कंग्रेचुलेशंस two टू decades later. Yeah. Absolutely. I was just about to say, वो सब 20 साल बाद सोच रही है ये बातें, अभी नहीं। Sure. But RDS, congratulations to your family as well. So let's start with one question, which is, and I won't ask how you're feeling because your smile says it all in terms of how you're feeling. But maybe just आप अपनी CA जर्नी के बारे में बात करो. Overall, last 4 years, 5 years, CA inter versus CA final. How did you feel that was different? You secured an All India rank in CA final. Were you targeting for an All India rank? You know, maybe highs and lows of the journey. Anything that you want to share with us? Okay, sure. So started my foundation journey in June 22 and then cleared foundation and intermediate in the first attempt. Intermediate mein also I was aiming for a rank, but kind of didn't get my strategies right, didn't know a lot of stuff. So इसलिए missed it by a good margin. And then final started and final में तो sure था कि लाना ही है, target पहले से ही था. Was kind of borderline obsessed with this rank का target and really worked hard towards it. Started my classes early, stayed consistent with the classes. Before study leave, my classes were over. And in study leave, may put in consistent hours daily. Talking about the lows, they happen more often than you think. I mean, every alternate day to say would be a low. Like something might go wrong, some might go wrong, or you Target might not achieve नहीं हो रहा recollect है. something, and then you feel bad about it, right? But then all you can do is just think about what's ahead, how many days are left, and then what's your final target? It's to clear the exam, right? So keep moving towards it, keep working hard with dedication, believe in yourself. That's the most important. And then I think you'll ace it and you'll find yourself on the other side, hopefully. No, absolutely. And I like the positive mindset. Guys, एक चीज note करना, lows will be a part of the journey. No lows mean that you will not achieve your target or that your target is delayed. You will still achieve your target. It's just that you'll probably have to reposition yourself. ये होता है ना कि रास्ते में पत्थर आ गया, या फिर वो गूगल मैप्स पे जो दिखाता है रीपोजिशनिंग, या जो भी उसको बोलते हैं कि वो नया आपको सिर्फ रास्ता लेना है और डेस्टिनेशन डज नॉट चेंज, वो तो आपका डेस्टिनेशन रहेगा। कार्तिक, टेल मी समथिंग। आपने बोला इंटर में कुछ शायद गलतियां हुई होगी and you still Hmm. kept target for rank in CA final. What do you think went wrong in inter that went right for you in CA final? Okay. So there'll be off the top of my mind couple of things that are the most important. Were first lack of writing practice. So in intermediate, Hmm. I could attempt only 700 out of my 800 marks. So बाकी का Oh, पेपर ही छूट गया in oh. totality. So and in final what I did is मैंने उस चीज को पकड़ लिया कि मैं फाइनल में मेरा पेपर नहीं छूटना कम चाहिए. आपको अटेम्प्ट Although करना ही नहीं कुछ भी हो। हाँ, although AFM and IBS में टोटल मिला के 30 670। मार्क्स तक मेरा ऑलमोस्ट रह गया था, मतलब ऑन एन हायर एंड. आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, बट देन मैं क्या करता था, आई यूज टू डू दिस डेली राइटिंग प्रैक्टिस इन माय स्टडी लीव. सो आई यूज टू रैंडमली पिक अप सम्स फ्रॉम अ पास्ट एमटीपी or a past question paper every day for FR and AFM every day. DT IDT भी मैं करता alternate day, and I used to solve that on a timely basis. So if it is 6 mark, I used to take say 10 minutes and then उसको डेली सॉल्व करता, डेली उसको करेक्ट करता एंड मिस्टेक्स नोट करके रखता एंड देन Hmm. उसी को ये करता. तो उसके वजह से ड्रास्टिकली मेरा राइटिंग स्पीड इंप्रूव हो गया. एंड देन फाइनल में तो आई अटेम्प्टेड लाइक 570 मार्क्स के ऊपर आउट ऑफ 600. And that सो 30 एज marks is अगेंस्ट also AFM and IBS. यस AFM एंड IBS, बाकी सब पेपर्स कंप्लीट हो गए.
And the second thing would be ke, having a proper track of what I'm studying on a daily or a weekly basis. So intermediate में I think गलती से कैसे हो गया था कि मैंने शायद हर एक चीज को टच अपॉन ठीक से नहीं किया इनफ नंबर ऑफ टाइम्स. मे बी ओनली द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बार बार टच हो गया था. Hmm. एंड जो छोटे छोटे टॉपिक्स रहते हैं वो बार बार टच अपॉन करना रह गया था. सो द मोर यू टच मसल मेमोरी बिल्ड होता है एंड देन उतना ज्यादा याद रहता है. तो फाइनल में आई केप्ट ट्रैक ऑफ एवरीथिंग, गेव इक्वल इंपॉर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट. इंटर में वो ईआईएस करके सब्जेक्ट होता था ना, उसको तो मैंने पढ़ा ही नहीं था. मतलब इन माय एग्जाम आल्सो आई कुड अटेम्प्ट लाइक ओनली 15 आउट ऑफ 35 डिस्क्रिप्टिव उसमें. Oh, अच्छा. उतना कम आता ही नहीं था. वो तो हाँ, अलग बात हाँ. था, आता भी नहीं था और कंप्लीट भी नहीं हो रहा था. तो उस हिसाब से हुआ. बट फाइनल में हर एक सब्जेक्ट को चाहे कितना भी वो टॉपिक घटिया हो या बोलते हो स्टूडेंट, जैसे ऑडिट में डिजिटल ऑडिट का चैप्टर है, people don't study that chapter only. Maximum people leave that chapter. As a point I made it कि मैं हर एक ऑडिट के रिवीजन में डिजिटल ऑडिट को पहले करूंगा. क्योंकि उसमें से बिकॉज एक आई क्वेश्चन ईट तो द आता ही आता है, एंड दैट इज अ वेरी आता ही स्कोरिंग आता है. चैप्टर. एंड डरते हैं लोग उससे. मैंने बोला आई ईट द फ्रॉग फर्स्ट. आई गो फॉर द चैप्टर जहां से लोग सबसे ज्यादा डरते हैं एंड मैं उसको छोड़ूंगा ही नहीं. तो ऐसे एक भी चैप्टर को नहीं छोड़ा फाइनल में. एंड देन आई थिंक दैट काइंड ऑफ वर्कड आउट इन माय फेवर. एंड देन ऑब्वियसली कंसिस्टेंसी एंड ऑल इज No, क्लीशे very, दैट उसके बिना तो very होता ही fair. नहीं है. Very fair. No, no, kudos to you. My takeaways, and guys, those who are watching, ये चार चीजें मेरे takeaways है इस पे से. Number one, you should first of all be aware about your mistakes. So इंटर में कार्तिक का 100 मार्क छूट गया था 600 में से, या सॉरी 800 में से. So he was aware that मेरे को राइटिंग प्रैक्टिस की जरूरत है. एंड सेकेंड इज, ही सेड मैं रोज एक क्वेश्चन लिखता था तो उसमें भी जो मिस्टेक्स होते थे आई यूज्ड टू डॉक्यूमेंट. तो एंड सिद्धांत, डियर फ्रेंड ऑफ माइन, कीप सेइंग नॉट डॉक्यूमेंटेड मींस नॉट डन. तो आप पहले तो रियलाइज करो क्या गलतियां हैं, एंड सेकेंड यू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ दोज मिस्टेक्स, ताकि वो फ्यूचर में मिस्टेक्स रिपीट ना हो. ओनली इफ यू डॉक्यूमेंटेड इट वेल विल यू बी एबल टू डू सो. So that's point one. I think Karthik was very self-aware, but not just that. He developed that approach where he was trying to keep a record of that mistakes also so that he does not repeat. Number two, he acted on those mistakes, which is every day he's done that writing practice. Number three, consistently being able to do that, which is very important. And last but not the least, which is a different point, कि सिलेबस में से कुछ छोड़ के मत जाओ एट द फर्स्ट प्लेस, विच इज 100% कवरेज. एंड नंबर टू, इवन अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो है उसमें से आजकल स्पेशली आईसीआई ज्यादा पूछ रहा है, जो अर्लियर अनइम्पॉर्टेंट टॉपिक्स होते थे, एंड उस छोटे टॉपिक्स को अब इंपॉर्टेंस देने का टाइम आ गया है. एंड अगर कोई टफ टॉपिक भी है, जस्ट अभी डील कर लो, अभी रोना चलेगा उस टफ टॉपिक के पीछे. बट अगर एग्जाम में पूछ लिया ना, कीप गिविंग दिस, आई लव दिस एग्जांपल ऑफ ब्लैक शोल्स. क्योंकि कोई कोई नहीं करके जाता है, छोड़ के जाता है. मेरे टाइम पे भी सब लोग बोल रहे थे छोड़ के जाते हैं, बट मैं फिर भी एक बार देख के गया था. हमारे टाइम पे तो पूछा नहीं. लेकिन द पॉइंट इज कि आप करके जाओगे तो फिर कुछ तो लिख पाओगे. इवन इफ यू गेट हाफ द मार्क्स, इट्स ओके, एटलीस्ट बेटर देन नॉट knowing it at the first place. I think this brings me another question कि आजकल we've seen Jan paper, we've seen May paper, and I'll come to AFM specifically also. But overall, it seems like the trend is changing a little. The papers are getting a little bit more trickier. And I think the trend is trickier in the True. sense it's not more than the fact that it is tough, it is more unexpected. And unexpected मतलब nook and corner of the ICI material में से पूछ लिया, कोई ऐसा टॉपिक पूछ लिया जो अब तक नहीं पूछा था, पेपर को लेंदी बना रहे हैं. सो ये सारे ट्रेंड्स कहीं ना कहीं ऑब्जर्व हो रहे हैं. व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? एंड if you were to go back and advise a younger Karthik, or your juniors now हाँ who are हाँ. watching this video, आपका क्या एडवाइस होगा for these CA students on what should they do better to face such papers in future? So my honest advice would be कि कवरेज पूरा रखो. मतलब सो आई ऑल्दो वी आर गोना टॉक अबाउट एएफएम इन अ बिट, बट मैं फिर भी आई जस्ट टेक एन Feel free to, एग्जांपल के मेरे please, को please. बताना था. तो एच मॉडल जो था ना, दैट इज अ कॉन्सेप्ट दैट आई हैड मार्क्ड इन मॉड्यूल. सो दैट वाज नॉट देयर इन माय टीचर्स नोट्स. अनफॉर्चुनेटली बैड लक ये था कि Hmm. लास्ट के 1.5 दिन में वो देख नहीं पाया था, तो Okay. इसलिए फॉर्मूला याद नहीं आया. बट नहीं तो मैंने ऐसे ऐसे 10-15 कॉन्सेप्ट्स मार्क करके रखे थे मॉड्यूल में. सो जो फैकल्टी बुक में एक नहीं है चीज लेकिन जो मैं मॉड्यूल में है. बहुत यस यस सो जो एक चीज मैं सबसे ज्यादा देख रहा हूँ जो लास्ट 2-3 अटेम्प्ट से हो रहा है, इंस्टीट्यूट कवरेज बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा है. मतलब Hmm. आईडीटी में, एएफएम में, इवन जब लास्ट टाइम शार्प इंडेक्स नहीं सॉरी वो एक एएफएम का सम था, वो जो कट ऑफ पॉइंट वाला था. आप ऑप्टिमल तो कोर्स कर रहे हो?
हाँ, शार्प ऑप्टिमल पोर्टफोलियो। सो वो जैन में आ गया था। सो बट फिर भी मैं उसको एक बार देख के तो गया था मई काफी के लोग फिर भी पेपर के छोड़ पहले। गए, जैन में पूछे, कोई, अब मैं नहीं पूछे। हाँ, कोई एक्सपेक्ट ही नहीं करेगा। मैं 1.5 दिन में भी देख के गया था उसको। ऑल्दो फिर वो उतने अच्छे से मैं अटेम्प्ट नहीं कर पाया था, क्योंकि आई थिंक उन लोग ने उसमें भी कुछ तो चेंज किया था। इट वाज नॉट द टिपिकल शार्प वाला क्वेश्चन। बट स्टिल मतलब बट यू एटलीस्ट नो यू, जस्ट दैट अगर आप फोर। देख कर ही नहीं गए हो तो और अनकॉन्फिडेंट फील होगा। एटलीस्ट देख कर गए हो, ठीक यस से यस अटेम्प्ट नहीं हुआ, एज यस अ सेकेंडरी प्रॉब्लम। Yes, yes, yes. So I think keep your coverage to the fullest, and one thing I would say, eat the frog first. ये दो हार्ड टॉपिक्स है ना, इसको आप लास्ट तक रखोगे तो वो रह ही जाएगा, कभी नहीं कवर होता है वो करेक्ट। कल 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 होके फिर वो एग्जाम के बाद ही याद आता है। तो यस। इसलिए ये जो हार्ड टॉपिक्स है इनको करो, एंड कवरेज पूरी रखो, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रस्ट योर सेल्फ, लाइक काम रहो एग्जाम में। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। And find those low hanging fruits. I mean, more relevant with AFM paper now. Try to find those low hanging fruits always. चाहे पेपर कितना भी टफ हो, देर विल ऑलवेज बी दो सम्स जो आता रहेगा, जो थोड़ा बहुत सिमिलर रहेगा मॉड्यूल से, एंड उनको ही सॉल्व करना है पहले। एंड तो एटलीस्ट कवरेज अगर उतने अच्छे मार्क्स से किया सिक्योर होगा। कर लो। उतने तो आज है, यस उसके यस बाद जो यस टफ है यस उसको ट्राई करो, लॉजिक से सॉल्व करो, कुछ तो मार्क्स यस उससे यस मिलेंगे, लेकिन जो आ रहा है वो तो अच्छे से कर लो। यप यप यप। Now about AFM. First of all, how much did you score in AFM? 65। Sure. Great. You've got an यप exemption in a paper यप like this. So you are the right candidate यप to ask this question too. ठीक है। यप। um, ये बताओ, सबसे पहले एएफएम का पेपर देख के व्हाट इज द फर्स्ट थॉट दैट केम टू योर माइंड? आई वॉज होपिंग यूड आस्क दिस क्वेश्चन। थोड़ा क्रिंज लग सकता है बट फिर भी मैं बोल रहा हूँ। प्लीज मैंने प्लीज। एग्जैक्टली यही हुआ। पेपर देखा मैंने, एंड मैं मतलब मैं आई डेवलप दिस टेक्निक ड्यूरिंग मॉक टेस्ट, क्योंकि जनरली मेरे साथ कैसा हो रहा था, मैं क्वेश्चन 5 या 6 ही एलिमिनेट कर रहा था। तो मैंने पीछे से पढ़ना चालू किया। तो फर्स्ट मैंने हेज रेशियो देखा एक्चुअली। तो हेज रेशियो मैंने देखा, एक सम है डेरिवेटिव्स में, मॉड्यूल का ही है, जो बाइनोमियल का हेज रेशियो है। बाइनोमियल का हेज तो मैंने रेशियो, सिर्फ यस। हेज, हाँ, तो मैंने हेज रेशियो देख के बोला बहुत इजी है करके, मैंने बोला फ्री के 7 मार्क है। फिर मैंने वो नहीं देखा था ब्लैक शोल्स है करके। तो फिर मैं क्वेश्चन नंबर 6A पढ़ा, क्योंकि वो फास्ट रहता ना, 15 मिनट्स, यू करेक्ट। टू रीड क्विकली। यस। तो कि आपका एलिमिनेट करना है सिर्फ। तो मैंने क्वेश्चन 6 से पढ़ा, मैंने बोला एमएनए का नया एमएनडी। समय, तो मैं वैसे वैसे पढ़ते गया। मैंने क्वेश्चन नंबर 5 देखा, मैंने बोला वो गैप रिपोर्ट ये सब समझ नहीं आ रहा है क्या है। फिर मैं एक एक करते ऐसे क्वेश्चंस पढ़ते गया। एंड फिर जैसे जैसे पढ़ते गया, प्रोग्रेसिवली इट गॉट के यार, चलो एक क्वेश्चन नहीं समझ रहा, ये भी नहीं समझ रहा, ये भी नहीं समझ रहा, ये मतलब मैं कौन सा एलिमिनेट करूं। बट फिर भी मैंने बोला चलो, आई सॉ कि क्वेश्चन नंबर 1A में जो क्वेश्चन था वो बहुत सिमिलर था मॉड्यूल से। तो मैंने वो पिक किया, मैंने बोला क्वेश्चन 1 इजी है, क्वेश्चन 2 इजी है, इनमें इजी पॉइंट्स है 10-10 मार्क्स के, वो पहले कर लेते हैं करके, एंड फिर सोचेंगे कौन सा क्वेश्चन एलिमिनेट करना है। तो मैंने मिड पेपर में सोचा कि क्वेश्चन नंबर 5 एलिमिनेट कर देंगे करके। एंड वाइल रीडिंग द पेपर, ऑनेस्टली द क्रिंज पार्ट कम्स इन नाउ। मैं ऑल इज वेल बोल रहा था खुद को बार बार, एंड आई वाज काइंड ऑफ स्माइलिंग द होल होल रीडिंग टाइम। मैं जान पूछ के, मतलब मन में, एंड नॉट लाउडली, बट खुद को सुनने जैसा, आई वाज जस्ट स्माइलिंग स्माइलिंग, एंड देख रहा था कि सबको ही, सभी ये पेपर में सभी फेल होने वाले हैं, हम अकेले नहीं है करके। तो दैट काइंड ऑफ गिव्स यू दैट पीस ऑफ माइंड, यू आर नॉट अलोन। इट्स हार्ड फॉर एंटायर इंडिया, एंड अपने को सिर्फ अपने एफर्ट पे देखना है। हमने जो पढ़ा है उसके हिसाब से हमको क्या आता है। मतलब फॉर ऑल यू नो देयर वुड बी समवन जिसने एच मॉडल देख के आया होगा, तो उसको तो एच मॉडल आता रहेगा, मुझे नहीं आता था वो टाइम पे। किसी को एमएनए का एमसीक्यूज का थियरी आता होगा, मुझे नहीं आता था तभी। अनफॉर्चुनेटली वो अगेन 1.5 दिन में रह गया था देखने को। हाँ तो हाँ। उस हिसाब से, so then you need to find out what you know and focus on those, because low hanging fruits सबके लिए थोड़े कॉमन रहते हैं, आपके लिए थोड़े स्पेसिफिक भी हो सकता है। उनको फाइंड आउट करो, उन पे फोकस करो, एंड खुद को प्लीज काम रखना, बिकॉज ऐसे पेपर्स में पेपर देख के ही समझ जाना चाहिए कि ग्रेस मार्किंग हो सकता है। पूरे इंडिया के लिए हार्ड है, ये भी समझ जाना चाहिए। सो जस्ट फोकस, क्योंकि ये पेपर हमेशा सब बोलते हैं, रिमेंबर द बेसिक्स, सब बोलते हैं कि एक पेपर तो हमेशा ऐसा टफ आएगा। आता ही है। एंड हमने आईसीआई कभी उसको प्रेडिक्ट मत करने जाओ। कभी कभी ऐसा डाल देगा, कल को हो सकता है नवंबर में ऑडिट में डाल दे। ऑडिट में डालेंगे तो और भी बुरा लगेगा, ऑडिट या एफआर में और भी डिफिकल्ट हो एएफएम तो जाएगा। फिर भी ठीक एएफएम स्टिल आई थिंक, हाँ, फिर भी कंफर्टेबल फाइंड करते हैं पीपल। ऑडिट या एफआर में डाल दिया तो और भी डिफिकल्ट जाएगा, तो बस खुद को काम रखो। फाइंड दोस 10-20 मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव जो इजी लग रहा है, 8 to 10 मार्क्स इन एमसीक्यूज जो इजी लग रहा है, एंड दिस ओनली टेक्स योर टोटल ऑफ 30। So then, I mean, उससे ज्यादा, then you have 70 marks to do trial and error to get 10 marks. So then, I mean, that's a आई very एग्री। good, you know,
chance that you have. And then the probability of scoring 40 marks is much higher. In fact, मैंने ना एक Yes, yes, yes. एक वीडियो बनाया है Jan 26 के AIRs की, मैंने सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस किया है हाँ ऑफ हाँ AFN, ठीक है. And the हाँ trend हाँ. is people have, and those 32 people who I took the sample Hmm. of, on an average have scored 27 marks in MCQs out of the 30 marks. Yeah, I saw that. I saw that post from you. I saw a post or a video something I saw from you. करेक्ट. तो आप 72 सोचो एवरेज था, सब रैंकर्स का. 72 मार्क्स वाज ऑन एन एवरेज, जिसमें से 27 हाँ, मार्क्स उनके एमसीक्यूज में आ रहे हैं, बाकी के मार्क्स उनके बराबर. सब्जेक्टिव में आ रहे हैं. अगर आप एक बार 27 सिक्योर कर रहे हो ना, फिर आपको सिर्फ 25 भी लेकर आओ ना आप सब्जेक्टिव में 70 मार्क में से, तो भी 25 और 27 आपके 52 मार्क्स तो फिर भी हो गए, 52 मार्क्स तो फिर भी हो गए ना. यस यस तो यस. 40 स्कोरिंग इज नॉट डिफिकल्ट अगर आपके एमसीक्यू सॉर्टेड है. एंड देन जो प्रैक्टिकल है, प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्टिव में क्या आपको अप्रोच लेना पड़ेगा, लाइक कार्तिक सेड, कि आप लो हैंगिंग फ्रूट्स लो. कोई तो है, कोई तो सम रहेगा जो मॉड्यूल से कंपेरेबल होगा, कोई तो सम लॉजिक से आप सॉर्ट कर पाओगे, थियरी कुछ कुछ आपको आती होगी, तो सब मिला के 40 तो बन जाएगा. अब एक बार 40 श्योर हो जाए ना, फिर आप बाकी के 60 में करो, 70 मार्क्स में ट्रायल एंड एरर, कुछ तो मिल ही जाएगा ना, कुछ तो मार्क्स आ ही नहीं, यस जाएंगे. यस. तो उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे, आपको बस बैठ के शांत होकर ये सोचना है कि मेरे को पास हो जाऊंगा, फिर जितने हो आई कैन स्कोर द मार्क्स. ट्रू ट्रू ट्रू. इनफैक्ट इट इज पर्टिनेंट टू एक्चुअली मेंशन के एएफएम का ये टाइम एमसीक्यूज थोड़ा हार्ड था. आई अनलाइक मे एग्री. बी आई 27 एग्री, इस वाज बार नॉट 27 नहीं पॉसिबल. होगा एवरेज, बट आई एम हाँ जस्ट ट्राइंग टू हाँ से फिर हाँ. भी. लेकिन सी, आई थिंक, लेट मी से वन थिंग, आई हैव आल्सो एनालाइज्ड द एमसीक्यूज. जो एमएनडे वाले एमसीक्यूज थे, दे वर ऑल डिफिकल्ट हैंड्स डाउन. वो आप 6 मार्क छोड़ दो. हाँ एक हाँ. वीएआर, वैल्यू एट रिस्क का डाइवर्सिफिकेशन वाला एमसीक्यू था, यस वो भी टफ था. बेयरिंग दीज फोर, अब आपका वो वाला एक था, जो आपका सोलार प्रोजेक्ट वाला जो एक था, ठीक है, रियल हाँ लाइफ हाँ हाँ ऑप्शंस, हाँ रियल लाइफ ऑप्शंस वाला जो हाँ है, हाँ हाँ रियल हाँ ऑप्शंस वाला है बेसिकली जो, हाँ वो हाँ वाला हाँ. तो यार आपका स्टडी मटेरियल का इलस्ट्रेशन है. उस यस इलस्ट्रेशन यस को उन्होंने एमसीक्यू बना दिया है, और 8 मार्क तो वो है. आपके फेट ऑफ यस. फॉरवर्ड्स के 8 मार्क है यार. इसलिए तो भरे हुए आईसीआई इलस्ट्रेशंस, अगर आप ये कर लोगे तो चलो ठीक है, ऐसे पेपर में आपका 27 नहीं आएगा एमसीक्यू में, 20 तो आ सकता है. लेट अस बी रियल, 10 छोड़ दो. टफ से टफ पेपर में भी, दिस वाज अ टफ पेपर, एमसीक्यू में 20 इज स्कोरेबल, इट इज डुएबल. तो 20 आ गया आपको, फिर तो 70 में से 20 हिलाना है ना सब्जेक्टिव में. और ऐसे टफ पेपर में आईसीआई भी तो ग्रेस देगा. एंड आई एम 100% श्योर, यस. सर्टिफाइड कॉपीज आने दो गाइस, आई एम 100% श्योर आईसीआई ने ग्रेस दिया रहेगा. हमारा ऑडिट का पेपर टफ था इन जुलाई 21, 5 मार्क्स सबको ग्रेस मिले थे इन ऑडिट. तो 5 मार्क तो मिला ही रहेगा ग्रेस, आई एम श्योर. और एटलीस्ट आई सर्टन. होप एंड सो. एक चीज मैं कहना चाहूंगा, मेरे को जो 65 है, आई एम मोस्ट 99% श्योर मेरे को एमसीक्यू में 16 से ज्यादा नहीं आया. ओके. मेरा जो देखा था मैंने उसके हिसाब से बहुत कम था, 12 था. बट मेरा डिस्क्रिप्टिव, क्योंकि मैंने खुद को बहुत शांत रखा, और मैंने डिस्क्रिप्टिव में क्या आपको स्टेप्स मिलता ना, यू यस. डोंट नीड टू नेसेसरली गेट एंटायरली करेक्ट. राइट. तो यस. एमसीक्यू इज लाइक यू आर राइट और यू आर रॉन्ग. यार हाँ. डिस्क्रिप्टिव में यू हाँ. माइट गेट स्टेप्स समवेयर. करेक्ट. तो इसलिए मैंने फोकस किया कि मेरे को डिस्क्रिप्टिव में सब स्टेप्स अच्छे से लिख के आने हैं, ऑल्टरनेट है तो ऑल्टरनेट लिख के आना है. तो हम्म. उसलिए आई नो कि आई हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन डिस्क्रिप्टिव. सो कमिंग बैक फ्रॉम द पेपर आई वाज डिसेंटली कॉन्फिडेंट कि गॉट चलो इट. निकल तो जाना चाहिए. तो उस हिसाब से. चलो या. अब लेट्स स्विच गियर. आप बताओ, अब पेपर हो गया, ठीक है, पेपर के हाँ. बाद आपको कैसा लगा? वन इज, हाउ नर्वस वर यू फीलिंग आफ्टर द पेपर? ऑडिट के लिए आप ध्यान नहीं दे पा रहे थे. व्हाट एनी सजेशंस फॉर द स्टूडेंट्स के नेक्स्ट पेपर पे कैसे ध्यान देना है, नॉट टू थिंक अबाउट दैट टफ पेपर, क्योंकि फ्यूचर में भी जैसे आपने बोला आईसीआई है, नेक्स्ट अटेम्प्ट में कोई और पेपर टफ आएगा, पर आएगा तो सही. सो हाउ शुड द हाँ. स्टूडेंट्स डील विद दैट? एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, देयर इज अ लॉट ऑफ noise going around. How did you handle that? श्योर. सो मी कमिंग बैक फ्रॉम द पेपर, एज आई सेड, मैं डिसेंट हद तक कॉन्फिडेंट था कि मेरे को पता मेरा डिस्क्रिप्टिव सेक्शन अच्छा गया इवन कमिंग आउट फ्रॉम द पेपर. सो बट वो तो है, थोड़ा तो डिस्टर्ब था क्योंकि ऐसा पेपर एक्सपेक्टेड ही नहीं था. तो मैं घर पे आया, आई स्टार्टेड स्टडिंग ऑडिट राइट अवे काइंड ऑफ. बट फिर मेरे एक सीनियर दोस्त का कॉल आ गया. एंड जब फिर मैंने उससे बात किया तो थोड़ा मुझे लगा मैं थोड़ा ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट तो नहीं हो रहा. Overconfident. सब बोल रहे. हाँ, सब बोल रहे कि इतना टफ आ गया, टफेस्ट इन हिस्ट्री बोल रहे हैं. फिर मैंने 2-3 रिव्यूज देखे. फोर्थ में थोड़ा स्लो गया, द डे ऑफ द पेपर ऑडिट का थोड़ा स्लो गया. बट देन व्हाट वी कैन डू, मैंने बोला चलो, मैंने बोला लोएस्ट सिनेरियो मेरा रैंक का तो टारगेट है, मैं 40 मान लेता हूँ. मैं मान लेता हूँ कि मेरे को बाकी सब में रैंक लेवल मार्क्स आ गए, आईसीआई मिराक्युलर सिनेरियो में मेरे को 40 दे देगा, वर्स्ट केस सिनेरियो. तो मैंने बोला 40 मान लेता हूँ, एंड अभी देखता हूँ बाकी के पेपर में मेरे को कितना लाना है. तो फिर फिफ्थ में से Hmm. ऑडिट पे फोकस किया.
फिर वही आप कर सकते हो, वही आपके हाथ में ऑनेस्टली। एक बार देख लो, ऐसे कुछ अगर कुछ एमसीक्यू सॉल्यूशन आ जाता है, अगर आपको लगता है कि इट विल नॉट हैम्पर योर प्रिपरेशन, इट्स यू हैव टू टेक द कॉल। लाइक आपने भी एक वीडियो लेटर बनाया था 1-2 दिन बाद एएफएम पेपर का, मैंने वो वीडियो देखा था एंड आई फेल्ट गुड आफ्टर दैट, बिकॉज मेरे डिस्क्रिप्टिव सॉल्यूशंस राइट गए। I got a lot more confidence while giving DT, IDT and IBS, because I said okay great, अगर मेरे को AFM में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, मतलब मेरा रैंक भी ऊपर वाला आ सकता है। तो उस हिसाब से दैट आल्सो गिव मी कॉन्फिडेंस कि यार आई हैव टू देन ट्राई टू स्कोर इवन मोर इन द नेक्स्ट पेपर्स। तो काइंड ऑफ वही है कि कम बैक, रिव्यूज देख लो, काम योर सेल्फ डाउन एंड देन फोकस ऑन द नेक्स्ट पेपर। And I think there was one more part to your question No, no, I which I think the point I was trying to make is कि ये तो हो गया है। अब इनफैक्ट ये सोचो ना कि मैं हाँ 10 मार्क ऑडिट में ज्यादा लेकर आने का ट्राई करता हूँ। एएफएम तो ट्रू वैसे ही ट्रू खत्म हो गया है। बाकी के पेपर्स में से चलो चार ट्रू पेपर बाकी, हर एक में 3-3 मार्क ज्यादा स्कोर करने का ट्राई करना, 4 मार्क ट्रू ज्यादा ट्रू स्कोर करने का, तो जो हो गया सो हो गया। एंड अदर थिंग इज आई थिंक होता क्या है ना, नेचुरल ह्यूमन बिहेवियर, अगर पेपर टफ जा रहा है, हाँ हम लोग आके एक्सटर्नल वैलिडेशन चाहिए कि हम ऐसे 5 वीडियोस देखेंगे एब्सोल्युटली जो लोग एब्सोल्युटली। आके बोल रहे हैं कि अरे टफेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ आईसीआई, बट गाइस उनको तो व्यूज मिल रहे हैं, आपका क्या? In fact, don't go into a state of self-loathing. Please take some ownership after the even these tough papers. Try to take some ownership yourself. कि ठीक है, whatever it is. Because if you go into a state of self-loathing, cribbing, blaming ICAI, भाई ICAI इतने साल से है, वो आगे भी रहने वाला है, वो ऐसे कुछ पेपर्स नहीं चेंज। डालने ही वाला है। शायद आज नहीं, 5 साल बाद एक और कोई अटेम्प्ट में ऐसा कुछ कर देगा, तो वो तो करते ही रहने वाला है। कंट्रोल द कंट्रोलेबल्स, जो फोकस ऑन द कंट्रोलेबल्स, सॉरी, try to focus on the controllables and just keep moving. That's all you can do. That's nothing else. No, no, absolutely, and it's very helpful. One last question I had was any myths that you think that the CA course in general has, जो आपको लगता है you should demystify? I think the biggest one would be the hours वाला myth, क्योंकि सब आके 14-14 घंटे बोलते हैं, 12 घंटे बोलते हैं। हाँ, आई अग्री, थोड़े रैंकर शायद लास्ट के महीनों में 10-12 आवर्स की प्रोडक्टिविटी करते भी निकालते होंगे। होंगे। आई पर्सनली आई पर्सनली ओवर द एंटायर स्टडी लीव, बिकॉज आई हैव ट्रैक्ड इट ऑन अ डेली बेसिस, आई ट्रैक माई ओ, आवर्स ऑल्सो, टारगेट्स ऑल्सो, ओ, बोथ। बिकॉज आई नाइस। डेंट आई डेंट से कि मैं ओनली टारगेट्स करूंगा। फॉर ऑल यू नो, आप शायद छोटे चैप्टर्स उठा रहे हो इन अ डे that are हाँ, probably worth 7 hours only. You are probably giving a lot of time to those chapters. तो मैं दोनों ट्रैक करता था। ओवर माई एंटायर स्टडी ली माई एवरेज इज लाइक 9 hours, एंड उसमें भी आप 10-15% हेयर इनफेक्टिव कट ही टाइम होगा। निकाल दो, तो उस हिसाब से 8 घंटे के आसपास ही होता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको 14, मैंने शायद एग्जाम लीव में किया होगा तो किया होगा, वो जो 12 डेज है तभी अगर हुआ होगा, तो कभी 12 आवर्स के ऊपर गया रहूंगा। नहीं तो इट हैज बीन इन द रेंज ऑफ, एंड दोस 9 hours इंक्लूड 7 hour डे ऑल्सो, 11 hour डेज ऑल्सो। सो जो कर रहे हो, स्लीप वेल, स्लीप इज अ वेरी अंडररेटेड थिंग आई थिंक। अगर आप नींद लेते हो ना, आपकी मेमोरी बेटर होती है। हमको कितना रिटेन करना पड़ता है सीए कोर्स में, करेक्ट, अगर आप करेक्ट। नहीं सो रहे हो तो आपका कॉग्निटिव ब्रेन नीचे चला जाता यस, है, एंड उसकी वजह से आपका कम रिटेन हो रहा है, आप ज्यादा पढ़ रहे हो, कम सो रहे हो, एंड वही साइकिल लूप में रिपीट होता रहता है। रिपीट हो रहा तो स्टार्ट से ही अगर कंसिस्टेंट रहोगे, तो अच्छी नींद लेके योर मेमोरी वुड बी इंटैक्ट एंड यू विल स्कोर गुड मार्क्स फॉर श्योर। तो आवर्स में जो कर रहे हो while you're studying is more important than anything else. The number of hours don't matter in the long run. In the long run, किसी ने 1 घंटा तुमसे ज्यादा पढ़ लिया, ओवर द इन अ वेरी ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स डजेंट मैटर। है। एट द एंड आपने जितना पढ़ाई किया, दैट वो मैटर्स। अच्छे से पढ़ा होना चाहिए, रिटेंशन मैटर्स, सो यू शुड रेस्ट वेल, स्लीप एब्सोल्युटली वेल, योर माइंड एब्सोल्युटली। शुड वर्क एक्टिवली। यस 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 वेरी यस। वेरी वेल सेड। एब्सोल्युटली। And any last words of advice for all the CA aspirants out there? And maybe I could tweak this question हाँ हाँ। in a way to say, okay, you did not get a rank in inter, but you got a rank in final. So for all those aspirants who've not gotten a rank in inter but are targeting a rank in final, how doable or how gettable is a rank? Just like maybe so that they get inspired कि हाँ हो सकता है. So I think I'd like to say first, if you want a rank, if you genuinely want a rank, try to be obsessed, kind of borderline obsessed with it. Because I think, and obsessed doesn't mean the literal meaning also. Try to manifest it, Yes. think about it, target it, and इतना प्रेशर लो कि आप उसके लिए बेटर पढ़ पा रहे हो। इतना प्रेशर मत लो कि आप उसकी वजह से पढ़ पढ़ ही ही नहीं नहीं पा पा रहे रहे हो, हैं. बट इतना तक प्रेशर लो कि इट हेल्प्स यू टू स्टडी बेटर। यस, इट हेल्प्स यू टू स्टडी बेटर।
सेकंड इज ट्राई टू बी ओवर प्रिपेयर्ड, मतलब स्टार्ट अर्ली, द वर्स्ट केस इज हैपन, आप थोड़ा ज्यादा प्रिपेयर कर लिए, आपको थोड़े कम मार्क्स आ सकते हैं उसके हिसाब से, बट आपने कम प्रिपेयर किया एंड अगर आपका नहीं, अगर आप फेल हो गए, आपका रैंक नहीं आया, तो यार वो उससे खराब और क्या हो सकता है। तो ट्राई टू बी ओवर प्रिपेयर्ड, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट विद क्लासेस, कंसिस्टेंटली पढ़ो ओवर द स्टडी लीव। एंड वन मोर थिंग दैट आई फील जो मैंने किया था इज लाइक कि मैंने खुद को एक ऑप्शन ही नहीं दिया था, मेरे लिए रैंक वॉज द बेयर मिनिमम इन दिस एग्जाम। तो मेरा टारगेट वही था कि यार मेरे को रैंक लाना ही है, चाहे जो हो जाए, दिस इज माई लास्ट शॉट एट इट। अगर अभी नहीं किया तो फिर मैं सीए बन जाऊंगा बट रैंक नहीं आएगा करके। तो बिकॉज ऑफ दैट आई ऑलवेज टारगेटेड दैट, यू नो दिस नेपोलियन ग्रेट किंग यूज टू डू दिस, कि वो ऑप्शन ही नहीं देने के लिए, द शिप्स यूज टू कम एट शोर व्हेन दे यूज टू गो एट वॉर, देन यूज टू बर्न डाउन द शिप्स। So no going back. Hmm. You just have to win the war. I mean, so likewise, don't give yourself an option. Don't say कि भाई अगर मैं, आपका रैंक का टारगेट है तो रैंक का ही होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं पासिंग से खुश हूँ, यू हैव टू बी हैप्पी अबाउट पासिंग, बट देन डोंट गिव योरसेल्फ उस दैट टाइम ऑप्शन, पे उतना गो एट इट। एनर्जी लगा लो पढ़ने में कि रैंक ही चाहिए यस, भाई। यस, गो ऑल इन, गो ऑल इन, डोंट यू नो गिव योरसेल्फ एन ऑप्शन कि भाई चलेगा, वो चलेगा एटीट्यूड मत रखना। You know, you should not actually give yourself an option, and rather, you know, the quote also fits very right. You should aim for the moon, and the worst case is you'll fall in the stars. So always, you know, try aiming very high, so that even if थोड़ा बफर लेके भी 50-60 मार्क जो टारगेट है उससे भी ज्यादा एम करो, ताकि अगर थोड़ा बफर लेके भी यू देन फॉल टू योर टारगेट। एटलीस्ट एंड पास तो देन फर्स्ट अटेम्प्ट दिस तो हो फीलिंग, ही। and let me tell you, this feeling is once in a lifetime. This feeling does not come back. The fact when I, because so as a matter of fact, I check the merit list first because मेरे को ओह भाई साहब, not because I was crazy confident. No, I यू told आर my friends also. मैनिफेस्टिंग इट, यू आर मैनिफेस्टिंग इट। Yes, 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 yes. So I had this expectation. I wasn't crazy confident कि मेरे को आने ही वाला है, but मेरे को like I said, मेरे को रैंक ही चाहिए था ये फाइनल में। तो when I wanted to see कि पहले मेरिट लिस्ट, तो जब मैंने देखा the it was जो माहौल था उसके बाद देखने के बाद, just crazy, just keep manifesting this result वाला moment also, and that keeps you motivating whenever you feel low. And then, you know, with God's grace, if it's meant for you, you will land up It in you the will end merit up list. there. No, no, absolutely. No, this is truly inspiring, Karthik, and kudos to you for the hard work. I think what does not, I think rank दिखता है, लेकिन rank and it's not about rank clearing, not clearing. सिर्फ मार्कशीट दिख के लोगों को उसके पीछे का हार्ड वर्क नहीं दिखता है। जो क्लियर नहीं हुआ उसने भी तो हार्ड वर्क किया ही है, और इंडिया रैंकर ने भी हार्ड वर्क किया है। बट आई थिंक व्हाट डज नॉट कम इन टू द पब्लिक इज what is the story behind the mark sheets, and which is why when I started the series back in the day when I used to interview all the rankers, the series was called Going Beyond Mark Sheets. So it is about going beyond Ah, mark sheets oh, and truly understanding what your actual story is. But yeah, yeah, that's super true. inspiring, Karthik. Thanks a lot for your time. And once again, wish you heartiest congratulations here, Karthik, and to your entire family as well. Time for celebration. Bindas, celebrate karo, MDP jao at the time of your life, and all the very best for whatever Yeah, you're planning yeah, to do next. And if there's anything I sure. can do to Thanks a help you, lot. let me know. Thanks a lot, Devesh. Thanks for the opportunity. This is amazing Absolutely being happy. here. And guys, for Really those happy to of you be who are here. watching, if you have any thoughts, feel free to put in the comment. In fact, I would say you should right now manifest your prefix CA tag and your suffix AR as well in the comments. Feel free to do so. And do subscribe to this channel if not already. There will be more such inspiring videos, but stay tuned and stay subscribed. See you all. Bye bye. Thanks, Karthik. See you. Bye bye. Thank you, Devesh. Bye-bye. Thank you. So I'd like to say one more thing. So this is an incident from when I was in my study leave. There was a ranker from one of the previous attempts. I think it was May 25. He'd actually put out a post where he had written that he studied 14, 16 hours every day for 4, 5 months. And then 10, 12 hours अगर आप पढ़ते हो फिर भी और chances of clearing CAR slim. सो वो देख के मैं थोड़ा तो एक सेकंड के लिए तो डाउट में चला गया था कि आई वाज़न्ट स्टडीइंग सो मच, बट देन आई टोल्ड माय टू क्लोज फ्रेंड्स के आई एम श्योर कि मैं सीए क्लियर करने के बाद रैंक भी लाऊंगा एंड आई विल श्योरली प्रूव दिस थिंग रॉन्ग करके एंड हियर इट इज। आई मीन आई नेवर स्टडीड सो मेनी आवर्स ऑन अ डेली बेसिस, एंड देन 9 आवर्स भी मैंने जो बोला जैसे एवरेज पढ़ के भी यू कैन गेट। सो यू नो डोंट बिलीव पोस्ट लाइक दीज। आई मीन just do what feels right, and while you're doing, please study nicely, and quality will always beat quantity.
And I will just say, guys, to each its own. There's no one size fits all. किसी को हो सकता है 15 घंटे पढ़ना पड़ता है तो उसको पढ़ने दो. You know yourself. लेकिन अगर कोई आपको आके बोल रहा है कि अगर तू 15 घंटे नहीं पढ़ रहा है तो फेल होगा, तो उसकी बात मत सुनो, उसको ब्लॉक कर दो. मैं खुद बता रहा हूँ, मैंने 7 घंटे से ज्यादा नहीं पढ़ा है. ऑफ कोर्स लास्ट मंथ ऑफ एग्जाम्स एंड डेज बिफोर एग्जाम वर डिफरेंट, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 5 months 6 months डिड आई स्टडी ऑन एन एवरेज मोर देन 8 hours? No, the answer is a big no. So guys, you should do what is right for you. You see all the rankings are saying the same thing. Hours do not matter. हाँ, पढ़ना पड़ता है, पूरा दिन पढ़ना पड़ता है, बट 12-14 घंटे पढ़ने का जरूरत नहीं है. As long as it is good 8 to 10 hours, it is sufficient. ठीक है, चलो, all the best future Great. CA. See you. And one thing, if this video has helped you and when you clear on the day of your results, you have to come back to this video and put a comment saying you have cleared and this video helped you. Really hoping and manifesting that for you. And I'm sure both me and Karthik will be super happy to see those comments. Absolutely. Thank you. Thanks, Karthik. Bye bye.